सेक्टर को इसमें छुआ गया है। हर सेक्टर को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए इस पर जोर दिया गया। और वहीं लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 पेश किया और इस बजट में उन्होंने आम आदमी से लेकर गरीब और किसानों के लिए कई घोषणाएं की हैं, लेकिन मिडिल क्लास को इनकम टैक्स के मोर्चे पर कोई राहत नहीं दी गई। उन्होंने आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। इनकम टैक्स स्लैब में पहले की तरह ही वो सभी व्यवस्थाएं रहेंगी और इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं शेयर बाजार को भी कोई राहत नहीं मिलने से मार्केट में बड़ी गिरावट हुई है। इस दौरान वित्त मंत्री की क्या बड़ी बातें थी, जरा वो आपको दिखाते हैं। I propose to integrate assessment and penalty proceedings by way of a common order for both. There will be no interest liability on the taxpayer on the penalty amount for the period of appeal before the first appellate authority, irrespective of the outcome of appeal process. Further, quantum of prepayment is being reduced from 20% to 10% and will continue to be calculated only on core tax demand. As an additional measure for reducing litigation, I propose to allow taxpayers to update their returns even after reassessment proceedings have been initiated, and an additional 10% tax rate over and above the rate applicable for the relevant year. The assessing officer will then use only this updated return in his proceedings. There is already a framework for immunity from penalty and prosecution in the cases of underreporting. I propose to apply this framework for immunity to misreporting too. However, in such a case, the taxpayer will need to pay 100% of the tax amount as an additional income tax over and above the tax and interest due. I propose a scheme for small taxpayers wherein a rule-based automated process will enable obtaining a lower or nil deduction certificate instead of filing an application with the assessing officer. For the ease of taxpayer holding securities in multiple companies, I propose to enable depositories to accept Form 15G or Form 15H from the investor and provide it directly to various relevant companies. I propose to extend time available for revising returns from 31st December to up to 31st March with the payment of a nominal fee. To create a range of skilled career pathways, a new range of skilled career pathways for our youth, I propose interventions in the following sectors. Health. Existing institutions for allied health professionals will be upgraded and new AHP institutions established in private and government sectors. This will cover 10 selected disciplines, including optometry, radiology, anesthesia, OT technology, applied psychology and behavioral health, and add 1 lakh AHPs over the next 5 years. A strong care system covering geriatric and allied care services will be built. A variety of NSQF aligned programs will be developed to train multi-skilled caregivers, combining core care and allied skills such as wellness, yoga, and operation of medical assistive devices. In the coming year, 1.5 lakh caregivers will be trained. भाई, जब देश का बजट आया तो उसके बाद राजस्थान से भी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई। बजट को लेकर के पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने इस दौरान हमारे सहयोगी से, जब उन्होंने हमारे सहयोगी ने बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा है गोविंद डोटासरा ने, जरा वो आपको दिखाते हैं। वित्त मंत्री सीतारमण ने आज जो है देश का आम बजट 2026-27 पेश किया है।
आम आवाम को क्या जो है इस बजट से सौगात मिली है, इस बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे साथ में जो है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा, इनसे बात कर जानेंगे कि जो है आज जो है केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है, वित्त मंत्री ने, क्या जो है सौगात मिली है, किस नज़रिए से आप देखते हैं इसको? देखिए, बजट बहुत निराशा देने वाला है और राजस्थान के लिए तो मैं कहूँ तो आप देखिए, पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं थी, यहाँ रोजगार की, उसमें कुछ भी नहीं है। जल जीवन मिशन में हमें हर घर नल की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसके लिए कोई विशेष पैकेज वर्षों से हम मांग कर रहे हैं, कांग्रेस भी करती थी, आज भी ज़रूरत है, कुछ भी नहीं मिला है। बांसवाड़ा को रेल नहीं मिला है, एनसीआरपी को जो है वो एनआरसीपी को जो राष्ट्रीय परियोजना है उसमें नहीं मिला, यमुना जल के लिए किसी तरीके का कोई बजट की इन्होंने बात नहीं की है। तो मैं समझता हूँ कि जो शेयर मार्केट है वो धड़ाम से गिरा है, इससे व्यापारी वर्ग भी बहुत दुखी है। छोटे व्यापारी जो अपने शेयर मार्केट में निवेश करते थे तो उनको भी बहुत निराशा लगी है। कर्मचारियों में जो इनकम टैक्स की स्लैब है उसमें भी कोई बदलाव नहीं है, उनको भी निराशा लगी है। किसान को और ज़्यादा जो है वो मार पड़ी है। किसान की आमदनी दोगुनी करने की बातें करने वाले डबल इंजन की सरकार ने कुछ भी किसान के लिए नहीं दिया है। तो बेरोजगारों के रोजगार के भी कोई रोड मैप, कोई विजन इन्होंने अपने बजट में नहीं दिखाया है। केवल बजट पेश करना है और वो बजट भी केवल चुनावी राज्य जो मैं समझता हूँ कि तमिलनाडु, जो बंगाल है, केरल है, उन जैसों में थोड़ी बहुत कोई बातें दी गई हैं। बाकी अन्य स्टेटों में दिया उससे भी कम यहाँ राजस्थान में दिया गया है। मुख्यमंत्री जी 60 बार से ज़्यादा इस 2 साल के अंदर केंद्रीय नेताओं, मुख्यमंत्री जो केंद्र के मंत्री वहाँ चले गए, 3-4 मंत्री हमारे यहाँ से भी हैं, लेकिन किसी में कुछ भी लेकर के नहीं आए। और भाजपा इसीलिए पर्चियों से मुख्यमंत्री बनाती है कि वो कोई कुछ कह नहीं सकें, इनको तो बड़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन नौजवान जो है वो बहुत निराश हुआ है, गरीब और ज़्यादा गरीब हुआ है, मध्यम वर्ग भी अपना जो सुकून से अपने 2 वक्त की रोटी खाता था उसको भी निराशा हाथ लगी है और किसी तरीके का कोई विशेष पैकेज हमारे स्टेट को नहीं मिला है। ये बहुत ही निराशाजनक है। भाजपा जो है इसको चहुमुखी बजट बता रही है और इसकी तारीफ कर रही है भाजपा नेता और मंत्री, क्या कहें? वो चहुमुखी बताएंगे, उनको अपनी नौकरी पक्की रखनी है तो वो कह देंगे क्या कि हमको ये मैं तो मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ इस बजट में कि आप इतने केंद्रीय मंत्रियों से मिले, इतनी बार अमित शाह जी से मिले, इतनी बार प्रधानमंत्री जी से मिले, इस बजट में आप क्या लेकर के आए? ये जनता को, राजस्थान की जनता पूछना चाहती है, उसको बताएं, तब पता चलेगा कि आपका जाना आना और हमारे टैक्स के पैसे से जो आप चार्टेड प्लान लेकर के 60 से भी अधिक दौरे आपने इस 2 साल के अंदर कर लिए, उसमें हमको क्या मिला? ये थे गोविंद सिंह जी डोटासरा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। इनका कहना है कि जो ये बजट है वो बिल्कुल निराशाजनक बजट है और आम जनता को इससे किसी तरह का कोई मुनाफा नहीं हुआ। जहां पर आगामी समय में जो विधानसभा चुनाव होने हैं वहां पर जरूर कुछ लोगों को सौगात दी गई है, लेकिन ये पूरी तरह से निराशाजनक जो है बजट है। सीकर से एनडीटीवी के लिए जगदेव सिंह पंवार। वहीं राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने केंद्रीय बजट को बेहतरीन बताया है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की दिशा में यह बजट बेहद अहम है। केंद्र सरकार ने बजट पेश कर दिया है और ऊर्जा मंत्री हमारे साथ मौजूद है। जी मंत्री जी, बजट आया है, वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है, कई सारी घोषणाएं की गई है। देखिए, ये बजट हमारा आने वाले 2047 के विकसित भारत बनाने के लिए उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। हमारी विकास दर 7% का जो लक्ष्य रखा है, और यही नहीं, इस बजट में चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के और शहरी विकास को लेकर के हो, ग्रामीण विकास को लेकर के हो, या फिर हाई स्पीड कॉरिडोर बना करके, जिस तरह से इसमें 7 हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने से आने वाले समय में हमारे किसानों की जो ऐसी उपज है जो जल्दी खराब होती है उसको भी इससे ट्रांसपोर्टेशन में सहायता मिलेगी, हमारे उद्योग को इससे फायदा होगा। और निश्चित रूप से जिस तरह से ये बजट हमारे ऊर्जा के क्षेत्र में भी इसमें सोलर पैनलों को सस्ता किया गया है, हमारे एटॉमिक एनर्जी के लिए जो आयात होने वाले ऐसे कल पुर्जे हैं जिन पर छूट दी गई है, और कई ऐसे हमारी चाहे लिथियम बैटरी हो उसमें आयात होने वाला जो रॉ मटेरियल है उस पर भी छूट मिली है। तो ये सब भी टैक्स की छूट ऐसे
ऊर्जा के क्षेत्र में जो अक्षय ऊर्जा जिसमें हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जरूरी है, उन सब पर केंद्र सरकार ने एक काफ़ी उनकी दरों को कम करने के लिए प्रयास किया है, ताकि उनसे आयातित अगर कोई जरूरी कोई मटेरियल है, उनके कंपोनेंट है, उनको हम यहाँ बिना किसी कम लागत पर ला करके और उनका उपयोग करके और ऊर्जा का उत्पादन कर सकें। देश को विकसित करने में ये बजट बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, युवाओं, किसान, महिलाओं। देखिए, ये बजट जिस तरह से आप देख रहे हैं, हमारी ग्रोथ रेट आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। चाहे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में कितनी भी परेशानियां चल रही हो, लेकिन भारत बड़ी तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। और इस समय हमारे, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, हर वर्ग को ये बजट सहयोग करने के लिए बनाया गया है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में इस बजट का दीर्घकालीन जो इसके फायदे हैं वो हमको देखने को भी मिलेंगे और देश विकास की गति में तेज गति से आगे बढ़ेगा। धन्यवाद है। तो ऊर्जा मंत्री जो है इस बजट को बेहतरीन बजट बताया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है हर तबके को टच किया गया है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी बड़ी घोषणाएं इस बजट में की गई है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। और इस दौरान वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जो है इस वक्त बातचीत उनसे की जा रही है, जरा दिखाते हैं आपको। बच्चों को बढ़ा सकते हैं, साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, इंडस्ट्री, इन सब के ऊपर ध्यान। जिन 4 जातियों की बात की है, युवाओं का, महिलाओं का, किसान का और मजदूर का, इन चारों के लिए भी कोई ना कोई स्कीम इसमें दिखती है। उन्होंने कहा कि जहाँ हम एक तरह कह सकते हैं युवाओं के लिए नए नए स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स, एजुकेशन के बड़े कॉरिडोर बनाने की बात की है, जिसमें कहीं एजुकेशन का सिस्टम वो हो, एक तो नई एजुकेशन पॉलिसी के जोड़कर उसके हिसाब से भारत की इंडस्ट्रियल ज़रूरतों के हिसाब से, भारत की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से हम अपने यूथ को तैयार करें, वो दिखेगा। दूसरा जो एजुकेशन कॉरिडोर्स हैं, उन एजुकेशन कॉरिडोर्स के साथ ही उन्होंने कहा कि कहीं इंडस्ट्रीज एरिया भी साथ होगा, जो इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत के हिसाब से हम युवा को एजुकेशन दे पाएंगे, उसके हिसाब से उसको तैयार करने का काम कर सकते हैं, जो हमारी आवश्यकता का एक बड़ा हमारी मैन पावर के रूप में एक बड़ी ताकत के रूप में खड़ा हो सकता है। महिलाओं के लिए जहाँ लखपति दीदी के कंसेप्ट को बढ़ाने का काम किया और उनका स्वाभिमान को और आत्मनिर्भरता को इसके माध्यम से बल मिलने की बात होगी। किसानों को भी उन्होंने कई तरह के लाभ इसमें देने की बात हुई। इसके साथ साथ फिशरी सेक्टर को भी इसमें लाभ दिया, अलग सेक्टर्स को निकाल करके। अभी बजट के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर घर में पैसा पहुंचे, इसकी कोशिश की गई है सेल्फ हेल्प ग्रुप को मजबूत करने के जरिए। कैसे साकार कैसे होगा ये धरातल? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का अगर नंबर देखें तो लगातार योजना बनने के बाद उसके ऊपर जहाँ सरकार की तरफ से योजना भी जुड़ रही है और उसके साथ मार्केटिंग का कंसेप्ट भी जुड़ा, उसका परिणाम हो रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की इनकम बढ़ रही है। और इसके माध्यम से हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरों में भी कुछ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने, उन ग्रुप्स में महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है और बड़ी संख्या में उनके आय के साधन बने। यही कारण है कि गरीबी के लेखा से नीचे आने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये राजस्थान में भी कम हुई है और दिल्ली में भी संख्या लगातार कम होती जा रही है, इन नीतियों के कारण से संभव हो पाया। लेकिन विपक्ष को ऐसा लगता है, पिछले दिनों हमारी विपक्ष के नेताओं से बातचीत हुई तो वो कह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली खुद की सरकार, राजस्थान सरकार कह रही है लखपति दीदी बढ़ी हैं, तो सरकार ने क्या उनको पैसे दिए लखपति बनाने के लिए, कितना खर्चा हुआ इस पर सरकार स्पष्ट नहीं कर रही। क्या पैसे देकर लखपति दीदी बनाना है या उनको उनके रोजगार के अवसर बढ़ा करके करना है, या आपस में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की मजबूती है, एक सब के लिए सब एक के लिए, उसके जरिए बढ़ाना है? कैसे होगी? देखिए, कांग्रेस के विजन की दिक्कत यही है कि कांग्रेस ने कभी भी आज आम आदमी को आत्मनिर्भर बना करके भारत की ग्रोथ इंजन के साथ जोड़े, इसका प्रयास नहीं किया। उन्होंने कहा कि कैसे हम इसको बैसाखियों पर चला सकते हैं, वही विजन उनका, इसका नहीं बन पाई। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में आने के बाद लगातार अपनी नीतियों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया, आत्मनिर्भर बनाने का काम किया, युवाओं के लिए बनाने का काम किया। उसी तरह की एजुकेशन पॉलिसी ला करके आने वाले समय का जो यूथ हम तैयार करें, वो भारत की ज़रूरतों को पूरा करने वाला इसका विजन साथ दिखता है। किसानों को भी किसान सम्मान निधि दी, उसके साथ साथ नई टेक्नोलॉजी दी, मृदा योजना की बात होगी, चाहे फर्टिलाइज़र को समय पर देने में, इसका ही परिणाम है कि हमारी कृषि में भी जहाँ आप बुआई का क्षेत्र बढ़ रहा है,
वहीं उनकी उपज भी लगातार बढ़ रही है, जो हमारे देश की जीडीपी का एक बड़ी स्ट्रेंथ बन के आ रही है। कारण के लिए इतना है कि नरेंद्र मोदी जी ने लगातार अपने कार्यक्रम, रीति नीति, उनके सबके माध्यम से आम आदमी को सशक्त करते हुए वो भारत की योजनाओं में कैसे जुड़ सके और अपनी आय को बढ़ाने के साथ साथ भारत में क्या योगदान कर सके, इसका ही परिणाम है। चाहे लखपति दीदी का विषय ले लें, किसानों की संपन्नता कर लें, गरीबी की रेखा से नीचे आने वालों की संख्या लगातार कम होने की बात करें, ये रिफ्लेक्शन साथ साथ दिख रहा है कि एक मजबूत भारत निकल के आ रहा है। आप पूर्व प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते प्रदेश की ज़रूरतों को भी समझते हैं, डेमोग्राफी, पॉलिटिक्स, सब कुछ पे समझ रखते हैं। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष होने के नाते वित्त पर भी आपकी पकड़ है, लेकिन क्या और कुछ बेहतर भी इसमें हो सकता था? अगर अरुण चतुर्वेदी वित्त मंत्री होते तो कुछ और भी नजरिया होता? मुझे लगता है देश का विजन इसमें दिख रहा है। पहले कभी हम देखा करते थे तो जहां हम अपनी राजनीतिक जरूरतें उसके आधार पर दिखते थे, पूरे देश का दर्शन इसमें है। उनके लिए योजना बनाने का काम हुआ है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम साफ साफ दिख रहा है। एक विजन है कि 2 साल पहले जो 2047 के विकसित भारत का जो एक विजन प्रधानमंत्री जी ने देखा था, एक सपना देखा था, उसमें आम जनता को जोड़ने के बाद धीरे धीरे एक एक बजट को दें। पिछली बार के बजट में मिडिल क्लास को, नौकरी पेशा वालों को टैक्स में रिबेट, इनकम टैक्स की रिबेट में बहुत बड़ी रिबेट दी थी, और उसके बाद इस बार उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कई तरह के फायदे, नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होगा, उसके साथ साथ इनकम टैक्स के साथ साथ कुछ जो पेनल्टीज़ का था, उन पेनल्टीज़ को कम करते हुए उसको लाभ देने की बात होगी। तो लगता है कि धीरे धीरे करते हुए अलग अलग स्टेजेस पर हम हर वर्ग को लाभ दें, इसका ये परिलक्षण दिख रहा है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में टूरिज्म की बहुत प्रबल संभावना है। आज गाइडों के नाते से हम जो घोषणा हुई है उसका राजस्थान को लाभ मिलेगा। कुछ क्लस्टर भी हैं टूरिज्म के निकल करके आ सके, उसका लाभ मिलेगा। राजस्थान में 5 लाख से अधिक आबादी के बहुत शहर हैं। एक केंद्र के बजट में घोषणा हुई है कि टियर 2 और टियर 3 के 5 लाख से अधिक आबादी के जो शहर हैं, उन शहरों को अलग से बजट, उसको बढ़ा के बजट देने की बात है। इसका लाभ राजस्थान को मिलेगा। इसी के साथ साथ टेक्सटाइल का राजस्थान में बड़ी संभावना है। वहीं इस बजट को लेकर के राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का इस पर क्या कहना है, जरा वो आपको दिखाते हैं। देखो, गंभीर बीमारी और उसमें महंगी दवाएं, गरीब परिवार उसका बाहर वहन नहीं कर सकते, तो एक बहुत बड़ा रिलीफ है बजट में। गंभीर बीमारियों को इलाज कराने के लिए लोगों को सुविधा मिलेगी, सरकार की तरफ से मदद मिलेगी। देखा जाए तो किस तरह का बजट आप देखते हैं? देखो, कृषि में तो कृषि सम्मान निधि किसानों को दी जा रही है, और नए टेक्नोलॉजी को लागू करने के लिए कृषि में बजट का प्रावधान किया जा रहा है, वो स्वागत योग्य है। और झुंझुनू से खबर, जहां झुंझुनू में बीजेपी कार्यालय में केंद्रीय बजट का लाइव प्रसारण हुआ और बीजेपी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने इस दौरान बजट देखा। प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच इस मौके पर खास तौर पर मौजूद रहे और उन्होंने बजट को ऐतिहासिक और जन कल्याणकारी बजट बताया। और आपको बता दें, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बीजेपी के कार्यालय के अंदर ये बजट का जो लाइव प्रसारण था वो यहां पर किया गया था, और बाकायदा बजट की जो बारीकियां हैं उसको जो कार्यकर्ता हैं उन तक पहुंचाया गया था। जैसा इसमें गंभीर बीमारियों से की जो दवाइयां हैं वो सस्ती हुई हैं, बजट को लेकर के कई महत्वपूर्ण चीजें जिनको लेकर के यहां कार्यकर्ताओं तक बात पहुंचाई। युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब के लिए एक प्रकार से जन कल्याणकारी बजट है। और इस बजट में विशेष तौर पे किसानों को जो स्पेसिफाई खेती करते हैं ऐसे लोगों के लिए काफ़ी सहूलियत इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने दी है। जैसे कोकोनट की खेती करने वाले जो लोग हैं उनके लिए विशेष इसमें प्रोविज़न किए गए हैं। हमारे जो अलग अलग अच्छी फसल जिसकी होती है, चाहे जैसे हिमाचल में सेब होती हो या फिर जम्मू कश्मीर में ड्राई फ्रूट्स होते हों, ऐसे जो एक प्रकार से रिचेज फ्रूट्स जिनको अपन बोलते हैं उनके लिए एक व्यापक प्रावधान इस बजट में किए हैं। कैंसर पेशेंट मेडिकल के नाते से भी काफ़ी सहूलियत। तो यहां आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी कार्यालय के अंदर बजट को लेकर के जो बारीकियां हैं वो बताई गई हैं, और इसके साथ साथ कई और बातें। दरअसल इसमें क्या सस्ता क्या महंगा, ताकि जनता के बीच में जाकर के कार्यकर्ता इस बजट के बारे में बता सकें, कोई भ्रम ना फैला पाए, इसको लेकर के खास तौर पर बताया गया। लेकिन जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के मुकेश दाधीच,
उन्होंने बताया कि कैसे जो जन कल्याणकारी बजट आम लोगों के लिए कैसे कल्याणकारी होगा, इसके बारे में उन्होंने बताया। बाकायदा बीजेपी कार्यालय के अंदर केंद्रीय बजट का लाइव प्रसारण किया गया। बीजेपी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने इस बजट को देखा, बारीकियों को समझा। प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच इस मौके पर खासतौर पर मौजूद रहे और बजट को ऐतिहासिक और जन कल्याणकारी बजट उनके द्वारा बताया गया। यह भी बताया गया कि कैसे इस बजट को लेकर के कई महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आम लोगों के जीवन में बड़े बदलाव ला सकती हैं। टैक्स रिटर्न के लिए ज्यादा वक्त मिल सकेगा, जो लाभ हैं वो सभी चीजें इस दौरान जो है बताई गई, कार्यकर्ताओं को समझाई गई, ताकि वो ये मैसेज लेकर के जन जन तक पहुंचे। कार्यकर्ताओं के जरिए जो मैसेज है वो ग्राउंड तक पहुंचे, आम लोगों तक पहुंच सके, ताकि इस बजट को आम जनता बड़े आसान और सरल तरीके से समझ पाए।